We welcome you back to the indoor convention stadium of Rajiv Gandhi University, where the anticipation is as heavy as the weights lifted. Today, the athletes from various categories will continue to vie for supremacy, showcasing their full strength and resilience. Stay with us as the drama of Day 3 unfolds that will shape who will win as the champion university in the Khelo India University Games 2023. Hello India University Games 2023, and for this category of women's 71 kg we have our first participant Bojanki Jhansi from Andhra Pradesh University. In her first session of snatch she will be trying for an attempt of 70 kg with a grip on the bar, trying to maintain her center of gravity. There goes the lift, and this has been declared a good lift by the referees. In her first attempt of this session of snatch, she will be trying for the target of 70 kg. The participant all ready for her attempt. It remains interesting to see whether she will be able to succeed in her endeavor or not. And with a firm grip on the bar, she makes a lift, and this has been declared a good lift by all the three referees. Tanusha from Bangalore University, Karnataka, trying for her attempt of 72 kg in the first session of snatch in this category of women 71 kg. It remains interesting to see whether she will be succeeding in her endeavors or not. With all the preparations going on, her firm grip on the bar, and here she tries to maintain a good grip. And this goes this lift, and it has been declared a good lift by all the three referees. Manju from Maharshi Dayanand University with a target of 73 kg in her first attempt of snatch in this category of women's 71 category in the event of weightlifting happening right now at Khelo India University Games at Rajiv Gandhi University Inner Convention Hall. All set and ready for her attempt with a grip on the bar, trying to maintain her center of gravity, and here she goes, giving a good lift as referred by all the three referees. With bar loaded at 74 kg, posing the challenges to other participants is next B. Jhansi from Andhra Pradesh University, going for her second attempt of 74 kg in this session of snatch in the category of women 71 kg. It remains very interesting and thrilling to see whether she will be able to succeed her endeavor or not, and all ready for her attempt, trying to maintain her center of gravity. Here she lifts the bar and trying to maintain her balance, and it has been declared a good lift by all the three referees. Participant from Lamrin University, Bhavna Sharma, going for her first attempt. She will be trying her hands on the bar with a target of 75 kg in the session of snatch, posing a challenge to other participants with a firm grip on the bar, trying to maintain her center of gravity, holding it, and then here it goes. A successful and a good lift. Bar loaded at 75 kg. Coming up next is Navdeep Kaur from Chandigarh University, trying her first attempt of snatch in this category of women 71 kg. With all the enthusiasm, she maintains her grip on the bar, and this in a very first attempt of hers. Unfortunately, it did not result in a good lift. It was declared a no lift by the referees. Coming up next is Binani from Adikavi Nanaya University from Andhra Pradesh, going for her second attempt with a target of 75 kg. Her previous attempt of 70 kg was a successful one.
All eyes set on her, whether she will be able to succeed in this attempt or not. With a firm grip on the bar, trying to maintain her center of gravity, but unfortunately she could not succeed in this endeavor of hers. This was declared a no live by all the three referees. Coming up next is again Navdeep Kaur from Chandigarh University. Her previous attempt of 75 kg target was unsuccessful. It remains to see whether she will be able to go through this time or not. With her second attempt of 75 kg, here comes Navdeep Kaur from Chandigarh University with a grip on the bar and trying to maintain a center of gravity. Unfortunately, this was also an unsuccessful attempt. Coming up next is Bella Nanani from Adhikavi Nanya University from Andhra Pradesh, trying for her last and third attempt of 75 kg target. Her previous attempt of the same weight ended in a no lift. It remains interesting to see whether she will be going through her ways this time or not. Her firm grip on the bar, and here she goes trying to maintain a center of gravity, but unfortunately this was also a no lift again. With this, all her three attempts are over. Bar loaded at 75 kg. Here it goes. Navdeep Kaur once again from Chandigarh University. This will be her third and final attempt of this session of snatch. All set for a target of 75 kg. It remains to see whether she will be able to lift it this time or not. And here she goes, succeeding in her endeavor finally. Her second attempt will be of a weight of 76 kg, thereby posing a challenge to other participants. It remains challenging to see whether she will be able to get through her target or not. With a firm grip on the bar, trying to maintain her center of gravity. Here she goes. And a good lift declared by the referees with a majority of 2:1. Here comes Manju from MD University. This will be her second attempt in this session of snatch. Her previous attempt was a target of 73 kg, which she succeeded in getting through. Now it remains to see whether she will be able to achieve her target of 76 kg in this second attempt. Her previous competitor failed to go through the same target with her firm grip on the bar. Trying to maintain a center of gravity. Here she goes, and this is declared a good lift by all the three referees. With this, Manju maintains her superiority in this rank list. It remains to see whether other participants are able to match her capacity or not. Here comes again Tanusha from Mangalore University, trying for her third and final attempt of this snatch session. Her previous attempt at 76 kg ended in a no lift. It remains to see whether she will be able to go through this time, and unfortunately it was a no lift again. Coming up next is participant number 4, Bhavna Sharma from LTS University. Her previous attempt was a target of 75 kg, which she succeeded into. In her second attempt, she will be trying for 78 kg target with a firm grip on the bar, trying to maintain her center of gravity. Unfortunately, it ended in a no lift. B. Jhansi from Andhra Pradesh University. In her third and final attempt, she will be targeting a goal of 78 kg in this session of snatch in the category of women 71 kg. With her grip on the bar, all ready for her attempt, trying to maintain a center of gravity. Here she goes.
and unfortunately it was no lift. On the stage is Manju from MD University. Her previous attempts of 73 and 76 kgs were successful. Now it all remains to see whether she will be able to achieve her target of 78 kg in her third attempt of snatch. With a grip on the bar, trying to maintain her center of gravity, and with all hardship and endeavors, she maintains her position, and it was declared a good lift by all the three referees. Bhavna Sharma from LTS University, the last attempt of this session, with a target of 78 kg in her third and final attempt of this snatch session. It remains to see whether she will be able to pose the challenge, and unfortunately it ended in a no lift. Thus, in the end of this snatch session, we have Manju from MD University leading the rank, followed by Bhavna Sharma from LTS University, followed by Navdeep Kaur from Chandigarh University, followed by B. Jhansi from Andhra Pradesh University, followed by Tanuja from Mangalore University, and in the end, B. Nani from Adikavi Nannaya University, Andhra Pradesh. With this session of snatch comes to an end. Our second session of clean and jerk has started with the third participant number 3, B. Nani from Adikavi Nannaya University, going for her first attempt in this session of clean and jerk. She will be targeting for 85 kg bar. Trying to maintain her center of gravity, she gets a signal of good lift by all three referees. Once again, we have Binani from Adikavi Nannaya University. In her previous attempt, she has targeted for 85 kg, in which she was successful. In her second attempt, she will be going for a attempt of 95 kg, a direct increase of 10 kg from her previous attempt, with a firm grip on the bar. A good clean, trying to maintain her center of gravity. Attempting for a good jerk, and here she could not make a lift. Coming up next is B. Jhansi from Andhra Pradesh University, who in her first attempt of clean and jerk will be targeting for a weight of 96 kg. Up next to my co-commentator Sanjeev. थैंक्स। यह और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की यह है लिफ्टर, जो कि अपने पहले प्रयास को पूर्ण करने के लिए 96 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य। बी झांसी 96 किलो का लक्ष्य बहुत ही सुंदर तरीके से अपने इस लक्ष्य को पूर्ण अंजाम तक लेकर गई हैं। एक अच्छा प्रयास सफलताओं में परिवर्तित किया। पहला ही प्रयास को 96 किलो उठाना एक अपने आप में काबिल तारीफ। भावना शर्मा लक्ष्य निर्धारित कर रही हैं अपने लिए 98 किलो भार उठाने का। पहला प्रयास है क्लीन एंड जर्क का उनका, 98 किलो भार उठाने का लक्ष्य। इस चुनौती को किस तरीके से पूर्ण करती हैं भावना। 75 किलो इन्होंने स्नैच में अपना पूर्ण किया था, जो कि इनके प्रथम प्रयास में हुआ था। बाकी 2 स्नैच के इनके विफल रहे थे प्रयास, मगर यहां पर पहले ही प्रयास को पूर्ण अंजाम तक लेकर गई हैं। 98 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई हैं भावना शर्मा। अपने इस पहले प्रयास के लिए तनुषा 99 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य इनके सामने। अच्छा प्रयास, प्रथम चरण पूरा करते नहीं, यहां पर प्लेटफॉर्म पर बैठ गई। उनका जो बॉडी है वो टच हुआ है प्लेटफॉर्म से, इसलिए यह लिफ्ट अमान्य हुई। संतुलन बिगड़ा और यह लिफ्ट उनकी अमान्य हुई।
अपने दूसरे प्रयास के लिए अग्रसर। 99 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य। पहले प्रयास में इन्होंने 96 किलो भार उठाया था। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक की यह छात्रा प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। स्नैच में नंबर 1 पर रही हैं 78 किलो भार उठाकर। और देखना होगा यहां पर क्लीन एंड जर्क में इनका प्रदर्शन किस तरीके से रहता है। 99 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य इनके सामने। अच्छा प्रयास, और उस प्रयास को पूर्ण सफलताओं में परिवर्तित करती दिख रही हैं फिलहाल। बहुत ही बढ़िया खूबसूरती से अपनी लिफ्ट को अंजाम तक लेकर गई। प्रयास अच्छा। हालांकि 2 निर्णायकों ने इस लिफ्ट को मान्य घोषित किया। एक निर्णायक ने, सेंटर रेफरी ने इस लिफ्ट को मान्य नहीं किया, मगर यह लिफ्ट मान्य घोषित होगी क्योंकि 2 का इनके पक्ष में निर्णय गया है। 99 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य। दूसरा प्रयास, पहले प्रयास में 99 किलो उठा पाने में असफल रही थी, मगर अब एक नए जोश के साथ इसको पूर्ण करने की तैयारी में। देखना होगा क्या इस लक्ष्य को भेद पाती हैं तनुष्का। बहुत बढ़िया। प्रथम चरण पूरा किया, बार को अपने शोल्डर्स पर लिया, और दूसरा चरण भी पूरा, और तीसरा दोनों पैरों को समानांतर खड़ा किया। बिल्कुल सही लिफ्ट, गुड लिफ्ट करार दिया गया है तीनों ही निर्णायकों द्वारा इस लिफ्ट को, और अपने लक्ष्य को भेद पाने में कामयाब हुई हैं 99 किलो भार उठाने में। Upcoming next is Navdeep Kaur from Chandigarh University with a target of 100 kg in her first attempt of clean and jerk. Her previous attempt in the snatch was of 75 kg. It remains interesting to see whether she will be able to achieve her target or not. With a firm grip on the bar, trying to maintain her center of gravity, it was a good clean. And this was declared a good lift by all the 3 referees. In her second attempt of clean and jerk, she will be trying to achieve a target of 100 kg. Her previous attempt of 96 kg was a successful one. It remains interesting to see whether she will be able to achieve her target in her second attempt of clean and jerk in this session of clean and jerk in the category of women 720 kg. With her firm grip on the bar, she made a good clean, trying to maintain her center of gravity, but unfortunately it was declared a no lift. Next is participant number 4 from LTS University. In her second attempt of clean and jerk, she will be trying to achieve a target of 100 kg. Unfortunately, this was a no lift. बी झांसी अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए अग्रसर है। 100 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। देखना होगा इस लक्ष्य को किस तरीके से पूर्ण करती हैं। प्रयास उनका अच्छा है, लक्ष्य उन्होंने बहुत ऊंचा साधा है। पहले प्रयास, दूसरे प्रयास में 100 किलो भार उठा पाने में नाकामयाब जरूर रही थी, पर इस तीसरे और अंतिम प्रयास में एक आशा की किरण लेकर आई हैं। देखना होगा इस ज्योति को किस तरीके से जलाती हैं झांसी, बी झांसी। नहीं, वही गलती उनकी जो पहली छटपटाहट दिखी थी। बहुत ज्यादा जल्दबाजी आप करें, पूरा टाइम लेना चाहिए आपको, पूरा एकाग्रता बरतनी चाहिए। मंजू एमडी यूनिवर्सिटी की छात्रा, 101 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य इनके सामने। इस चुनौती को पूर्ण करने के लिए अपने आप को अग्रसर कर रही हैं। प्लेटफॉर्म पर इस समय अपने प्रदर्शन को प्रस्तुत करने के लिए अग्रसर। इनका प्रदर्शन कैसा रहता है यह देखना होगा। 101 किलो बहुत बड़ा लक्ष्य, और उस लक्ष्य को भेद पाएं ऐसी क्षमताएं पूर्णतः परिवर्तित हो रही हैं। एक ऐसा अनुभूति हो रही है कि ये लिफ्ट इनकी मान्य होगी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कोई शंका नहीं। इस लिफ्ट को पूर्ण अंजाम तक लेकर गई हैं और अपने प्रतिकूल इस लिफ्ट को अनुकूल बनाया। काबिले तारीफ। भावना शर्मा अगली प्रतियोगी अपने तीसरे और अंतिम प्रयास में, यानी कि तू डाल डाल में पात पात। इससे पहले मंजू ने 101 किलो का जो लक्ष्य अपनी चुनौती दी थी इन
प्रतियोगियों को, तो उस प्रतियोगियों में आपस में जो चल रहा है 1-1 किलो का भार, उसको देखना बहुत जरूरी है। और यहां पर भावना शर्मा अपने इस प्रयास को पूर्ण करने के लिए अग्रसर। 101 किलो का लक्ष्य इनके सामने, तीसरा और अंतिम प्रयास। देखना होगा इस लक्ष्य को क्या भेद पाती हैं। बिल्कुल सही, इस लक्ष्य को भेद पाने में पूर्णतः अपनी सफलताओं को परिवर्तित किया और 101 किलो का लक्ष्य पूर्ण करके पायदान पर अगर आप देखें तो यहां पर जो चेंज दिख रहा है वो अपने आप में स्वाभाविक है। नवदीप कौर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्रा। चंडीगढ़ एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि प्रबल दावेदार मानी जा रही है। अगर आप पिछले संस्करण की बात करें तो जैन यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्रथम बाजी मारी थी। अब देखना होगा क्या चंडीगढ़ की ये छात्रा उस इतिहास को रच पाएंगी। 103 किलो भार उठाने का प्रयास इनका, तीसरे नंबर पर चल रही हैं फिलहाल। क्या तीसरे से आगे बढ़ पाएंगी? 103 किलो का इनका लक्ष्य और इस लक्ष्य को पूर्णतः सफलताओं में परिवर्तित करती हुई ये प्रयास उनका बहुत बढ़िया। और इसके साथ ही उन्होंने 103 किलो की लिफ्ट ही नहीं करी है, अपने व्यक्तिगत में भी सुधार किया है। अगली प्रतियोगी तनुषा 105 किलो का लक्ष्य अपने लिए साधा है। हालांकि 5वें स्थान पर चल रही हैं, 5वें से स्नैच में। और क्लीन एंड जर्क की बात करें तो चौथे स्थान पर हैं। क्या अपने स्वयं के व्यक्तिगत को सुधार पाने में कामयाब हो पाएंगी? 105 किलो का लक्ष्य इनका अपने आप से खुद से चुनौती और अन्य आने वाले प्रतियोगियों को एक बहुत बड़ी चुनौती देकर जाएंगी। यद्यपि 105 किलो उठाती हैं तो नहीं, असफल रही, निराशा हाथ लगी। नवदीप कौर 105 किलो का लक्ष्य, यह लक्ष्य इसलिए किया जा रहा है, इन्होंने चुनौती रखी है क्योंकि आने वाले प्रतियोगियों को चुनौती देना चाह रही हैं। यानी कि अगर हम बात करें भावना की तो भावना ने इनको 101 किलो की चुनौती दी थी। उसके बाद फिर अब इन्होंने स्वयं के व्यक्तिगत को बढ़ाते हुए 103 के बाद कहा पायदान 3 पर थी, 3 से नंबर 2 पर आ गई और अब नंबर 2 से नंबर 1 पर चली जाएंगी। यद्यपि 105 किलो की लिफ्ट को पूर्ण करती हैं तो प्रयास अच्छा है, लक्ष्य बहुत ऊंचा, मगर खिलाड़ी वही जो अपने उस लक्ष्य को सांध पाए। बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी चूक हुई, बहुत ज्यादा पैर को खोला और उनकी टोस जो थी वो ज्यादा उठ गई थी, जिस वजह से चोटग्रस्त भी हुई हैं। Next we have medal distribution ceremony with first position backed by gold medalist Manju from Maharshi Dayanand University Rohtak, followed by Navdeep Kaur of Chandigarh University bagging silver medal, followed by Bhavna Sharma from Larmin Tech Skill University Punjab bagging bronze medal. To felicitate and award them, we have on the stage our dignitaries, Shri Bulang Marik, Treasurer, Arunachal Olympic Association. Along with escorting him is Professor Puraji Tago, Principal Government Model Degree College, Palin Karada District. Bhavna Sharma from LTS University Punjab, begging bronze medal. Silver medal winner Navdeep Kaur from Chandigarh University. Thank you so much, sir. Now, ladies and gentlemen, please give a big round of applause to the winner of The gold medalist of this event, Manju from Maharishi Dayanand University Rohtak. To felicitate her, we have on the stage Shri Bulang Marik, Treasurer, Arunachal Pradesh Olympic Association. Thank you so much, sir. Now I would like to request Professor Next is souvenir distribution ceremony. College Palin Karadadi to present the souvenir To present souvenir to all the participants, we have Professor Puraji Tago, Principal Government Model Degree College, Palin Karadadi District.
खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं उनके खेल कौशल के लिए, उनके उस उत्कृष्ट प्रयासों के लिए, उनकी उस मेहनत के लिए जो उसने की है। और आज इस जगह मंजू ने जगह बनाई है, स्वर्ण पदक विजेता बनी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वर्ष 2024 की इस 71 किलो भार वर्ग में स्वर्णिम सफलताएं दिलाने वाली मंजू एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक की छात्रा। पदक कोई भी हो, पदक का रंग कोई भी हो, पदक पदक ही होता है और पदक में एक अपनी लालिमा होती है और वो लालिमा यहाँ पर साफ दिखती हुई इन खिलाड़ियों की मेहनत यहाँ पर दिखा रही है कि इन्होंने औरों से बढ़कर मेहनत की है। मेहनत सभी करते हैं मगर पदक तालिका में अपना नाम सुनिश्चित करने के बाद पता चलता है कि उनकी मेहनत कितना रंग लाई है। पहली बात तो नवदीप कौर जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि और मैंने देखा मैच में कि आपका जो वेट था बस 1 किलो से 1 केजी से आप पीछे रह गए थे, तो उस पे आपको कैसा लग रहा है? पहले तो मैं उस गॉड का थैंक यू करना चाहूँगी कि मेरा सिल्वर मेडल आया उस। मैम सेकंड बात ये है कि मैं 71 की रिकॉर्ड होल्डर हूँ, मेरा 114 नेशनल क्लींजर का रिकॉर्ड है और अभी थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से मैं ट्रेनिंग में नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने सिल्वर मेडल लिया है, तो ये तो मेरे लिए गोल्ड के बराबर ही था। और गुड एक्सपीरियंस की लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करूँगी। तो अगला आप क्या सोच रहे हैं कि नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है? मुझे आने वाले टाइम का कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफाई करना है। मेरा फर्स्ट और लास्ट नहीं बोल सकते, लेकिन मेरा फर्स्ट टारगेट यही है कि मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई करना है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम होप करते हैं कि यू डू योर बेस्ट। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू। मंजू, आपको कैसा लग रहा है कि बाकी जितने भी कंटेंडर्स से कंटेस्टेंट्स थे उसमें से आप सबसे छोटी थी और लेकिन भी आपने सबको बीट करके गोल्ड हासिल किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा। अच्छा, तो फिर आगे का आप क्या सोच रहे कि इसके बाद क्या करोगे आप? नेशनल इंटरनेशनल के लिए तैयारी। तो ये यहाँ पे हमारे कोच सर है, मंजू की कोच सर, तो आइए हम उनसे भी बात करते हैं। सर आप बताइए कि गोल्ड लेकर आने तक का आप किस तरह के आपने उसको प्रैक्टिस दी, किस तरह के डाइट उसने मेंटेन किया था? मैम बात इसी है, हमने इसको लिफ्टिंग में इसको करीब मेरे पास 1.5 साल हुआ है। मैंने देखा जब ये आई तो इसमें स्पीड और ठीक थी लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी, तो मैंने देखा इसमें किस पॉइंट पर किस पोजीशन में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमने उसी पे उसका मेंटेन किया है और उसी पार्ट के ऊपर काम किया है ताकि ये आगे बढ़ सके। इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, 1 साल के अंदर नेशनल में गोल्ड निकाल दिया है। पहले इससे पहले यहाँ पे खेलो उसमें ओपन नेशनल में 2nd मेडल आया था इसका और उसके बाद खेलो इंडिया यूथ में भी 2nd मेडल था। अब यहाँ इन्हें गोल्ड देकर बहुत अच्छा, बहुत खुशी का महसूस किया। Coming on the stage, first participant is Dheeraj Kumar Pandey from Ram Manohar Lohia, Awadh University. In his first attempt of snatch, he will be targeting for a weight lifting of 110 kg. With his utmost. This was declared to be good lift by the referees. The next lifter is once again Dheeraj Kumar Pandey from Ram Manohar Lohia, Awadh University. In his second attempt of snatch, he will be trying for a weight of 115 kg. His previous attempt of 110 kg was a successful one. And this was declared a good lift by the referees. अगले लिफ्टर शुभम कुमार, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के ये छात्र। 117 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य। 81 किलो भार वर्ग पुरुषों की ये प्रतिस्पर्धा चलती हुई स्नैच इवेंट्स और इसमें दूसरे लिफ्टर हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के छात्र। 117 किलो भार उठाने का इनका पहला लक्ष्य। इनसे पहले धीरज कुमार ने 115 किलो की लिफ्ट पूर्ण की थी। अब
उनको चुनौती आगे दे रहे हैं। 117 किलो से प्रारंभ कर रहे हैं शुभम। एक अच्छा प्रयास और सफलताओं में परिवर्तित किया शुभम ने। यह प्रयास बहुत अच्छा, 117 किलो की लिफ्ट पूर्ण अंजाम तक लेकर गए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के ये छात्र। शुभम अपने दूसरे प्रयास के लिए अग्रसर। शुभम कुमार, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के ये छात्र। 123 किलो भार उठाने का लक्ष्य इनके सामने। दूसरा प्रयास है 123 किलो भार उठाने का इनका। इससे पहले 117 किलो अपने प्रथम प्रयास में सफलताओं में परिवर्तित करते हुए उस लिफ्ट को पूर्ण अंजाम तक लेकर गए थे। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के कांस्य पदक विजेता रहे हैं शुभम कुमार। अब देखना होगा यहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चौथे संस्करण में क्या पदक तालिका में अपने आप को सुनिश्चित कर पाएंगे। स्नैच के ये दूसरा प्रयास इनका। 123 किलो नहीं, बहुत ज्यादा ब्रॉड हाथों को खोला जिस वजह से शोल्डर से पीछे गई लिफ्ट, वेट गया और इनका ये अमान्य हुई लिफ्ट, धरातल पर गिरता हुआ वेट। The next lifter is Shubham Kumar from Guru Nanak Dev University. It will be his third and final attempt. His previous attempt with a target of 123 kg resulted in a no lift. It remains interesting to see whether he will be succeeding in this attempt or not. Holding the bars with his firm grip. Here goes Shubham Kumar. Trying to lift the bar, and this was declared a good lift by the referees. Krishna Bharati from SRM University. Krishna Bharati, Southwestern Championship silver medal winner, with his target of 128 kg in this first attempt of snatch. It remains interesting to see if he succeeds or not, and yes, it is a good lift. It is declared a good lift with a majority of 2 referees is to 1. किशन भारती अपने अगले प्रयास के लिए एसआरएम यूनिवर्सिटी के छात्र। 128 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य। पहले प्रयास में वह प्रयास उनका विफल हुआ। जूरी ऑफ अपील ने उसका पुनरावृत्ति करी, अपने निर्णय को जांचा परखा और यह बहुत एक अच्छा प्रक्रिया है, एक अच्छी प्रक्रिया है कि यद्यपि अगर कोई चूक होती है तो किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता। जूरी उसको रिव्यू करती है डिसीजन को, और जूरी ने देखा, जांचा, परखा और समझा कि यह गुड लिफ्ट नहीं थी, उसको परिवर्तित किया और अब पुनः उसी प्रयास को पूर्ण करने के लिए यहां पर अग्रसर हैं कृष्ण। 128 किलो का इनका प्रयास। दूसरा प्रयास, मगर दूसरा प्रयास भी इनका विफल हुआ। मनोवैज्ञानिक दबाव बना हुआ है अभी कृष्ण भारती के ऊपर। अपने तीसरे और अंतिम प्रयास में अग्रसर हैं। 128 किलो का लक्ष्य जो कि पहले और दूसरे प्रयास में विफल हुए थे। तीसरे प्रयास में यद्यपि अगर इसको पूर्ण कर पाने में कामयाब होते हैं तो इस प्रतिस्पर्धा में बने रहेंगे, अन्यथा इस प्रतिस्पर्धा से वह बाहर हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है उनको इस प्रयास को करो या मरो वाली परिस्थिति उनके सामने, इस प्रयास को पूर्ण करना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रयास को उन्होंने सफलताओं में परिवर्तित कर भी दिया है। अब इनका देखना होगा क्लीन एंड जर्क में इनको बहुत अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। The next lifter is participant number 5, Valluri Ajay Babu from Chandigarh University, with a target of 130 kg in this session of snatch.
and it was a good lift. The next lifter is Adi Narayan Bhattu from Centurion University. 3 times Open National participant. Adi Narayan is targeting for a weightlifting of 130 kg in his first attempt, and this was declared a good lift by the referees. गुरनाम सिंह अगले लिफ्टर अपने प्रथम प्रयास के लिए 134 किलो भार उठाने का लक्ष्य इनके सामने। गुरनाम काफी अनुभवी हैं और अगर इस प्रतिस्पर्धा की बात करें तो गुरनाम, अजय बाबू और आदि नारायण, इन 3 लिफ्टर्स में संघर्ष देखने को मिलेगा। तीनों ही लिफ्टर्स की अगर हम बात करें तो डाल डाल में पात पात। और यहाँ पर गुरनाम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के रजत पदक विजेता, स्टेट चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता, जूनियर नेशनल के स्वर्ण पदक विजेता। देखना होगा यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में क्या पदक तालिका में अपने आप को सुनिश्चित कर पाएंगे नाम को। गुरनाम बहुत ही बढ़िया खेल कौशल के साथ 135 किलो की लिफ्ट को पूर्ण अंजाम तक ले जा पाने में कामयाब हुए हैं। 134 किलो भार उठा पाने में कामयाब। अजय बाबू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र, 135 किलो भार उठाने का लक्ष्य इनके सामने। दूसरा प्रयास है। पहले प्रयास में इन्होंने 130 किलो भार उठाया था। सीनियर एशियन चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता, जूनियर वर्ल्ड राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के यह स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की अगर हम बात करें तो यहां अजय बाबू के पास काफी अच्छा अनुभव है और वो अनुभव आज क्या रंग लाता है, उस तकनीकी योग्यता का कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं वह देखना भी बाकी है। 135 किलो की लिफ्ट बहुत ही सहजता और उत्कृष्ट प्रयास के साथ इस लिफ्ट को पूर्ण अंजाम तक ले जा पाने में कामयाब हुए हैं अजय बाबू। बहुत ही सुंदर खेल कौशल का प्रदर्शन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ये छात्र। 135 किलो लिफ्ट पूर्ण की। Adi Narayan Bhattu from Centurion University, Tamil Nadu. His previous attempt of 130 was a successful one. Next, he is targeting 135 kg, but unfortunately, this resulted in a no lift. Next lifter again, Adi Narayan Bhattu from Centurion University, a 3 times All India University Championship participant. It is interesting to see whether he will be succeeding in his third and final attempt of achieving the target of 135 kg in this session of snatch. Posing a tough challenge to his competitors, Adi Narayan Bhattu gets a good lift from the referees. गुरकरण सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी के यह छात्र, 137 किलो भार उठाने का लक्ष्य इनके सामने। दूसरा प्रयास है। पहले प्रयास में 134 किलो बहुत ही सफलताओं में परिवर्तित किया था। यानी कि हम कह सकते हैं अपने अन्य प्रतियोगियों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देंगे, क्योंकि स्नैच की अगर हम बात करें तो 137 किलो अभी तक किसी भी लिफ्टर द्वारा अंजाम तक नहीं लेकर गए हैं। यानी कि कह सकते हैं हम अजय बाबू और इनके बीच में, गुरकरण के बीच में एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा चलती हुई। यानी कि पहली और दूसरी पायदान पर आने का इनका जो लक्ष्य है उसको देखना होगा। हालांकि आदि नारायण भी बीच में हैं। यानी कि 137 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुए हैं। यानी कि एक ऐसी चुनौती उन्होंने प्रस्तुत की है अपने प्रतिद्वंदियों के पास कि उसको भेदना असंभव तो नहीं कहूंगा, मगर हां मुश्किल जरूर है। अजय बाबू 137 किलो भार उठाया था गुरकरण सिंह ने। अब उनको चुनौती दे रहे हैं अजय बाबू। 138 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य। तीसरा और अंतिम प्रयास है। यानी कि स्नैच में अपनी प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए नंबर 1 पायदान पर आने के लिए इनका प्रयास। फिलहाल अभी ये दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। गुरकरण की बात करें तो वो पहले नंबर पर हो चुके हैं स्नैच में अभी तक। हालांकि गुरकरण के पास एक अवसर और है, मगर अजय बाबू के पास ये स्नैच का अंतिम अवसर। इस अंतिम अवसर में 138 किलो का लक्ष्य भेद पाने में नाकामयाब हुए और यहां पर स्कोर बोर्ड पे अभी फिलहाल वह दूसरे स्थान पर ही अपना स्थान सुनिश्चित कर पाए हैं। स्नैच की बात हो रही है।
गुरकरण सिंह एक ऐसे खिलाड़ी जो ऐसा उभर कर आए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एक ऐसी ज्वाला पंजाब यूनिवर्सिटी की जो यहाँ पर जलती हुई दिख रही है। 140 किलो का लक्ष्य उनके सामने, एक ऐसी चुनौती जो स्वयं के लिए उन्होंने निर्धारित की है 140 किलो, और इसको अगर पूर्ण करते हैं तो नंबर 1 पर अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे। स्नैच में फिलहाल 140 किलो लक्ष्य इनके सामने। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उत्कृष्ट, अतुल्य साहस के साथ अपने इस लिफ्ट को पूर्ण अंजाम तक ले जा पाने में कामयाब हुए हैं गुरकरण सिंह, और उसको सुनिश्चित कर दिया कि मैं इस लिफ्ट में किसी को आगे नहीं जाने दूंगा। 81 किलो भार वर्ग की प्रतिस्पर्धा स्नैच की यहां पर समाप्ति हुई है। चलते हैं क्लीन एंड जर्क की ओर। धीरज कुमार पांडे अपने क्लीन एंड जर्क। स्वागत है आप सभी दर्शकों का इस दूसरे सत्र के मुकाबलों के लिए। दूसरे सत्र के मुकाबलों में यहां पर सबसे पहले अपनी प्रतिस्पर्धा में शिरकत कर रहे हैं धीरज कुमार पांडे, राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी के छात्र। 140 किलो क्लीन एंड जर्क, पहला प्रयास सफलताओं में परिवर्तित किया। क्लीन एंड जर्क में एक अच्छे खेल कौशल को प्रस्तुत करते हुए 140 किलो की लिफ्ट पूर्ण करी। The next lifter is once again Dheeraj Kumar Pandey from Ram Manohar Lohia, Awadh University. His first attempt in this session of clean and jerk was of 140 kilogram. In his second attempt, he will be targeting an achievement of 145 kilogram. And here it is no lift. Pandey from Ram Manohar Lohia University. His previous attempt of 145 kilogram in this session of clean and jerk ended in a no lift. It remains interesting to see if he can go through his target this time or not. And finally, in his third and last attempt, the feat is achieved. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के ये छात्र शुभम कुमार, प्रयास इन्होंने लक्ष्य अपने लिए रखा है 155 किलो भार उठाने का। प्रथम प्रयास है 155 किलो भार उठाने का क्लीन एंड जर्क का इनका। अगर स्नैच की बात करें तो 123 किलो भार उठाकर यह 5वें स्थान पर हैं फिलहाल स्नैच में। अब देखना होगा क्लीन एंड जर्क का इनका प्रदर्शन किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। 155 किलो का लक्ष्य। लंबी गहरी सांस, अपने आप को एकाग्र किया, एकाग्रता के साथ वेट को उठाया सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फोर्स के साथ, और यहाँ पर थोड़ा सा जर्क लिया। जर्क के साथ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया निर्णय आना बाकी, अभी बिल्कुल सही गुड लिफ्ट करार दिया गया है। इस लिफ्ट को एक अच्छे प्रयास को पूर्ण सफलताओं में परिवर्तित किया। CUTM यूनिवर्सिटी के ये छात्र 155 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य। है 135 किलो इन्होंने अपना स्नैच में सर्वश्रेष्ठ दर्ज करवाया है और तीसरे नंबर पर चल रहे थे स्नैच में। बहुत बढ़िया 155 किलो की लिफ्ट गुड लिफ्ट करार दी गई है। On the stage, the next lifter Krishna Bharati from SRM University, in his first attempt of clean and jerk with a target of 160 kg. His previous best was 128 in the session of snatch. Currently trailing at the 4th position
and it was unfortunately a no lift. On the stage, Valluri Ajay Babu from Chandigarh University, targeting for 160 kg this time in this session of clean and jerk. 2023 National Games Goa gold medalist Valluri Ajay Babu, currently trailing at the second position with his previous best in the session of snatch being 135. It remains interesting to see if he can achieve this feat, remarkable feat, and pose a challenge to other competitors or not. And it was declared a no lift. आदि नारायण अपने दूसरे प्रयास के लिए यहां पर अग्रसर 160 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। इससे पहले उन्होंने 155 किलो सफलताओं में परिवर्तित करते हुए अपने लिफ्ट को पूर्ण अंजाम तक लेकर गए थे। तीसरे स्थान पर चल रहे हैं अभी तक स्नैच में, और अगर क्लीन एंड जर्क की बात करें तो पहले स्थान पर हैं फिलहाल। अभी 160 किलो का इनका लक्ष्य, क्या इसको पूर्ण कर पाते हैं? अभी नहीं, यहां पर इस चुनौती को पूर्ण कर पाने में नाकामयाब हुए। बहुत बड़ा इन्होंने अपने लिए लक्ष्य साधा था, उस लक्ष्य की पूर्ति हेतु अग्रसर तो जरूर थे मगर अवसर नहीं दे पाए। कृष्णा भारती एसआरएम यूनिवर्सिटी के ये छात्र, 160 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य। दूसरा प्रयास, पहले प्रयास में विफलताएं हाथ लगी, दूसरे प्रयास को क्या पूर्ण कर पाते हैं यह देखना होगा। 160 किलो की लिफ्ट इनके सामने, ये लक्ष्य बार पर लोड कर दिया गया है, वेट लोड कर दिया गया है बार पर, और देखना होगा अब मजबूती से पकड़ बार पर, हाथों को समानांतर खोला, एक सुनिश्चित दूरी बनाई और ये प्रयास सार्थक सिद्ध होता दिख रहा है। प्रथम चरण पूरा किया, दूसरा चरण जर्क का भी पूरा किया, सार्थकता पूरी दिखती हुई, और यहां पर इसके साथ 160 किलो भार उठा पाने में अपनी दक्षताओं को पूर्ण प्रदर्शित किया। अजय बाबू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के यह छात्र अपने दूसरे प्रयास के लिए अग्रसर। पहले प्रयास में 160 किलो भार उठा पाने में नाकामयाब जरूर हुए थे, मगर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं इस भार वर्ग में। 81 किलो भार वर्ग में यह पदक तालिका में जरूर सुनिश्चित करेंगे अपने नाम को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का इनके पास काफी अच्छा अनुभव, सीनियर एशियन चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, नेशनल गेम्स में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, और यहां पर उस क्षमताओं को पूरा प्रदर्शित भी किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो उनका अनुभव है, उस अनुभव को यहां पर साफ प्रदर्शित किया, और 160 किलो भार उठा पाने में अपनी दक्षताओं को पूर्ण किया। 161 किलो लक्ष्य आदि नारायण का, 160 किलो। अजय बाबू दूसरे नंबर पर थे अभी, अब देखना होगा कि क्या वह आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि अभी आदि नारायण अपनी चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। 160 किलो भार उठाकर उन्होंने अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया। निर्णय यहां पर 2 रेफरीज का उनके पक्ष में रहा और 1 रेफरी का उनके पक्ष में नहीं है। दूसरा प्रयास 163 किलो, इससे पहले के प्रयास की अगर हम बात करें तो उन्होंने 155 किलो का अपना प्रयास सफलताओं में परिवर्तित किया था। 163 किलो के लिए उनका ये लक्ष्य। चुनौती बहुत बड़ी है, मगर वो चुनौती ही क्या जो बड़ी ना हो, और उस चुनौती को पूर्ण करते हुए देखना होगा। साथ ही साथ अपने अन्य प्रतियोगियों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। 163 किलो। गुरकरण की अगर हम बात करें तो वो 165 से प्रारंभ करना चाह रहे हैं, मगर यहां पर शुरुआती क्षणों में ही अपनी इस लिफ्ट को उन्होंने पूर्ण करने में असमर्थता जताई और धरातल पर वेट को छोड़ दिया। His previous attempt in the session of snatch was that of 140 kilogram.
currently trailing at the first position. He's posing a serious challenge to other contenders. It remains interesting to see whether Gurkaran will be able to achieve this remarkable feat or not. With his firm grip on the bar, this was a very good lift indeed. अपने तीसरे और अंतिम प्रयास को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत अग्रसर हो रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के यह छात्र। 165 किलो का लक्ष्य इन्होंने अपने लिए निर्धारित किया है उठाने का। इससे पहले 160 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुए थे। पहले प्रयास में 160 किलो इनका विफल रहा था, मगर दूसरे प्रयास में उस चुनौती को पूर्ण भी किया है। तो यहाँ कह सकते हैं क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। तीसरी पायदान पर चल रहे हैं। स्नैच की बात करें तो दूसरे नंबर पर रहे थे, मगर फिलहाल अभी 165 किलो का लक्ष्य इनके सामने। तीसरा और अंतिम प्रयास। पहला चरण पूरा किया, दूसरा चरण पूरा किया। बहुत ही बेहतरीन अतुल्य साहस और अतुल्य शौर्य के साथ इस लिफ्ट को पूर्ण कर पाने में कामयाब हुए हैं। 165 किलो की 166 किलो भार उठाने का लक्ष्य। पहले प्रयास में 155, दूसरे प्रयास में 163 विफल रहा। पहले प्रयास में 155 सफलताओं में परिवर्तित किया था, मगर चुनौती इनके प्रतिद्वंदियों ने इनके सामने इतनी बड़ी खड़ी कर दी है कि अब इनको उनसे 1 किलो और अप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि इससे पहले अजय बाबू ने 165 किलो उठाया है, तो अब 166 किलो भार उठाकर यह अपने आप को सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपना बेस्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो देखना होगा। हालांकि अजय बाबू के पास अभी एक प्रयास शेष है, इनका ये अंतिम प्रयास है। लिफ्ट नहीं कर पाए। दूसरा प्रयास 167 किलो इन्होंने पहले प्रयास में पूर्ण किया था क्लीन एंड जर्क में, और 140 स्नैच का इनका सर्वश्रेष्ठ रहा है। यानी कि स्वर्ण पदक के लिए पूर्णता अपने दावेदारी को सिद्ध कर पाने में कामयाब हैं। हालांकि चुनौती इनको अजय बाबू भी कड़ी दे रहे हैं। अब यहां पर स्वर्ण और रजत के लिए जो लड़ाई चल रही है इन दोनों प्रतियोगियों में, वह देखना होगा कि स्वर्णिम सफलताओं की ओर कौन आगे बढ़ता है। एक अच्छा प्रयास, लंबी गहरी सांस के साथ लिफ्ट किया। दूसरा चरण भी पूरा किया और यहां पर इस लिफ्ट को पूर्ण कर पाने में कामयाब हुए हैं। नया कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया है यहां पर उन्होंने। देखना होगा। एक अच्छा प्रयास, बहुत ही बढ़िया उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए यहां पर। His previous attempt was that of 160 kg in the same session of clean and jerk. Currently trailing at the 4th position and 3rd in the session of clean and jerk. Oh, this was the referee declared it a no lift. With his previous attempt of 167 kg in this session of clean and jerk, he has seriously contended with the other participants. एक 170 किलो भार उठाने का प्रयास है इनका। पंजाब यूनिवर्सिटी के ये लिफ्टर। देखना होगा। एक ऐसे खिलाड़ी जो नए कीर्तिमान को भी स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सांसें सभी की रुकी हुई, मगर यहां पर ये प्रयास थोड़ा सा विफल हुआ। जल्दबाजी के शिकार हुए, छटपटाहट, और फिर भी मगर इस एथलीट ने सभी का दिल जीता है। To present the medal, I would like to request Professor Gloria
On the third position, we have Adinarayan Bhattu of Centurion University, Tamil Nadu, being presented with bronze medal by Professor Boarina Tok. On the second position, we have the second medal winner, Valluri Ajay Babu of Chandigarh University. To felicitate him, we have on the stage Professor Boarina Tok, Department of Education, Rajiv Gandhi University. बिल्कुल जोरदार तालियों से स्वागत किया जा रहा है गुरकरण सिंह का, पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र जो कि 81 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता बने हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वर्ष 2024 वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा के 81 किलो भार वर्ग में स्वर्णिम सफलताएं दिलवाने वाले गुरकरण सिंह, जिन्होंने 140 किलो स्नैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और पहले स्थान पर रहे और 167 क्लीन एंड जर्क में पूर्ण किया और पहले स्थान पर रहे। कुल योग रहा उनका 307 किलो और पहले स्थान पर रहे। यह है तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले आदिनारायण, जिनको स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। और अब अजय बाबू, उनको स्मृति चिन्ह द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। रजत पदक विजेता गणमान्य अतिथिगण द्वारा उनको स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। स्वर्णिम सफलताएं दिलाने वाले यह खिलाड़ी अपने विश्वविद्यालय को, पंजाब विश्वविद्यालय के ये छात्र, जिन्होंने अपने अतुल्य साहस के साथ एक बहुत ही बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया और सभी का मन यहां पर जीत लिया। उनके प्रयास कोई भी विफल नहीं हुए हैं, सभी प्रयास उन्होंने पूर्ण किए। अंतिम प्रयास में जरूर 170 किलो उठा पाने में कामयाब नहीं थे, मगर फिर भी उन्होंने अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया है। मिस्टर अजय बाबू, आप इस मेडल को जीतने के लिए किस तरह का प्रिपरेशन आपने किया था अभी तक? मैम, इस मेडल को विन करने के लिए मैंने ऐसा तो कोई प्रिपरेशन नहीं किया है। इसके 1 वीक पहले मैं सीनियर एशियन खेल के आया था और उधर से इधर ही मैं डायरेक्ट आ चुका है। अभी तक 1 वीक में ट्रेनिंग भी नहीं किया मैंने। बिना ट्रेनिंग करके मैंने इतना किया था, उसी में मैं खुश हूँ, इतना परफॉर्मेंस है। तो आप किसी को स्पेशली थैंक करना चाहेंगे फॉर योर मेडल? मेरे पेरेंट्स और मेरे कोचेस को मैं थैंक करना चाहूँगा इस मेडल के लिए। मिस्टर गुरकरण सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो फाइनल जो आपका क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आपका जो फाइनल लिफ्ट था उससे पहले भी आप ऑलरेडी नंबर 1 पे थे। तो अगर आप उसको आपका आखिरी लिफ्ट ना भी करते तब भी आप नंबर 1 पे होते, तो आपके उस समय में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? व्हाट वर यू थिंकिंग? उस समय आई वाज थिंकिंग कि ये लिफ्ट लगानी है, बट फॉर मतलब किसी रीज़न की वजह से वो लिफ्ट पास नहीं हुई। बट मैं पहले भी नंबर 1 पे था, सो इट्स गेम ऑफ स्ट्रेस। तो आपने जिन लोगों को बीट किया, बाकी जो 6 पार्टिसिपेंट्स थे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे अगली बार के लिए? मैं तो कौन होता हूँ उनको कहने वाला, तो बस ट्रेन करो और ट्रेन एंड विन। कोई है जिसको आप पर्टिकुलरली थैंक्स करना चाहेंगे, जो आपके लिए आप जो जीत पाए इसके लिए? Yes, I want to thank my coach Karanveer Singh Buttar. I trained since 7 years with him and my parents. Yes. तो अगला आप क्या सोच रहे हैं इसके बाद? नेक्स्ट लेवल आप क्या करोगे इसके बाद? जो चांसेस मिलेंगे, I will go internationals representing India. कोई स्पेसिफिक है जो आप खेलने वाले हो नेक्स्ट? National games. So hope you win there again. Congratulations once again, Mr. Gurkaran. With this, today's weightlifting competition in Khelo India University Games 2023 comes to a close. Today's triumph extends beyond an individual athlete as it profoundly shapes the narrative of the winning university. Join us tomorrow again for more weightlifting competition of Khelo India University Games.